Let us start chapter 12, electricity, session 2. In last session, we have studied about electric current and electric circuit. So for that, we should know, to make electric circuit in short, we should know few symbolic representations for the appliances or the devices or the material which we are using for making electric circuit. Okay, so first we will see the symbols for the devices, and then we will move towards the Ohm's law, which is a very important topic of this chapter. Before starting this chapter, you must know few basic things from session 1. That is the formula of electric current, right? And the unit of electric current. Formula of electric current is Q, that is a charge upon time, T. Okay, Q will be in a coulomb and time will be in second, and current will be in ampere. Next one is you should know potential difference, also called as electric potential. We denote electric potential with V, and its formula is work done upon flow of charge. That will give you the formula as V is equal to W by Q. Work is taken in joules and charges are taken in coulombs. Okay, so this is the formula for the electric potential, and your unit of electric potential is V. So these are the basic things which you should know, and this will help you throughout this chapter in solving many examples. So let us start session 2. We will see circuit diagram, how to use the symbols for battery, for bulb, for wire, for joints, for junction. There are many symbolic representations. Okay, so let us see with the help of a table. We know that an electric circuit, as shown in figure, comprises a cell or a battery, a plug key, electrical components, and connecting wires. So these all are a basic components of circuit diagram. So that will be like what I will show you the diagram now. In last lecture also I showed you one electric circuit diagram. ओके, तो जो बहुत इजी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज याद रहनी चाहिए, यूनिट्स के साथ, फॉर्मूला के साथ. ओके, it is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of circuits are represented by symbols conveniently used. तो बहुत सारे हम टीवी दिखाना है सर्किट डायग्राम के अंदर, तो टीवी पूरा हम नहीं ड्रॉ करके दिखा सकते, तो उसके लिए सिंबल्स यूज होता है. रेफ्रिजरेटर दिखाना है तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, बल्ब के लिए सिंबल यूज करते हैं, वायर के लिए सिंबल यूज करते हैं, की के लिए सिंबल यूज करते हैं. तो ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करने से इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायग्राम बनेगा, दैट विल बी वेरी इजी एंड यू कैन क्विकली ड्रॉ द डायग्राम. अंडरस्टूड? Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table. जो हम जनरली बेसिक्स जो सिंबल है, मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स है, वो अब हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे. बिफोर दैट आई विल शो यू वन सर्किट डायग्राम. सो दिस इज अ बेसिक नॉर्मल सर्किट डायग्राम which contains a cell or battery. Here it is a battery. It contains bulb. This is the emitter, which we have already seen in the session 1. Emitter is used to measure current, and voltmeter is used to measure electric potential, and this K is a key. Okay, so here in this circuit diagram we have used 4 basic components. Understood? Symbols of some commonly used components in circuit diagrams. So let us see with the help of a tabular representation. So electric cell, it is represented by a big line and a small line.
अंडरस्टूड? वर्टिकल बिग लाइन फॉलोड बाय स्मॉल लाइन. सो यहाँ पे जो बड़ी लाइन होगी, ये बड़ी लाइन वो हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कंसीडर करते हैं. छोटी लाइन उसको हमें लाइन से कनेक्ट नहीं करना है. देखो यहाँ पे बीच में गैप है. सो हियर वी विल पुट अ नेगेटिव साइन. बड़ा है वो पॉजिटिव, छोटा है वो नेगेटिव. गॉट इट? फिर आएगा बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो हम यहाँ पे एक सेल है, ऐसे दो तीन एक साथ कनेक्ट करेंगे, इट विल गिव यू बैटरी. एंड बैटरी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे ड्रॉ करने से भी हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैटरी को. ओके, सो ये भी करेक्ट वे है एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे. नाउ कम्स द प्लग की और स्विच. सो प्लग की स्विच, बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर खास आपको ध्यान रखना है, इट इज अ ओपन. ओपन के अंदर यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं है. यू कैन सी हियर एट द सेंटर देयर इज अ नो डॉट. ओके, सो दिस मींस इट इज अ ओपन. और यहाँ पे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन है. गॉट इट? प्लग की स्विच वो क्लोज कंडीशन के अंदर, मतलब मैंने यहाँ पे एक अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ये की रखी हुई है जो पूरे कनेक्शन को कनेक्ट करता है एंड इसलिए उसको क्लोज बोला है. हमारे लिए ये ऑफ होगा और ये होगा ऑन. ओके, तो ये खास आपको ध्यान रखना है. देन कम्स द वायर जॉइंट. व्हेन यू आर जॉइनिंग टू वायर्स, तो आपको ऐसे दिखाना होगा एक डॉट के साथ. फिर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है, तो सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो उसको ऐसे उल्टा सी करके ड्रॉ कर सकते हैं. कोई ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. अंडरस्टूड? फिर आपको यहाँ पे ऐसे किया है तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब दिस थिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वायर क्रॉसिंग. ज्वाइन नहीं हो रहा है, बस क्रॉस हो रहा है, ऊपर से जा रहा है. Now the seventh one, electric bulb. It is represented by this symbol, like you can say M, or you can directly use the bulb also. But this is a very easier than this complicated one. I am drawing here simple. ऐसे आप draw करोगे, then also it will work. This is also the correct way. Register of a resistance. So resistance is given like this zigzag connection. Okay. एंड अभी ये रजिस्टर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर क्या है, वो सब हम आगे और यही चैप्टर के अंदर और यही सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं. इन शॉर्ट, गॉट इट? व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोल सकते हैं. तो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पूछे या रियोस्टेट का डेफिनेशन पूछे, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम ही लिखना पड़ेगा. गॉट इट? अब यहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस में और वेरिएबल रेजिस्टेंस में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है. ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं. दे आर आस्किंग इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वेरिएबल रजिस्टर. वो एग्जाम में पूछते हैं. लास्ट ईयर मॉडल टेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था. तो ये दोनों में से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो. सिर्फ क्या करना है आपको, रजिस्टर्स का सिंबल ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो रजिस्टर का सिंबल एंड फिर एक एरो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, या फिर ये एक ऐसा एंटर जैसा एरो, उल्टा एंटर का एरो यहाँ पे प्रेस कर दो, देन ऑल्सो इट विल गिव यू द रियोस्टेट. तो रियोस्टेट का आपको सिंबल बहुत, बाकी के सब बहुत इजी है, सिंपल है. ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि एरो आपको कैसे ड्रॉ करना है. ये दोनों तरीके करेक्ट है. देन कम्स द एमीटर, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था. वी विल रिप्रेजेंट इट विद अ सर्कल एंड इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू राइट ए. एक साइड होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड होगा नेगेटिव टर्मिनल. एंड सिमिलरली वी विल हैव वोल्ट मीटर, जिसमें वोल्ट मीटर में ए हम ए मीटर के लिए यूज कर रहे थे, वोल्ट मीटर के लिए हम वी यूज करेंगे. एंड फॉर दैट वी विल हैव पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ तक आपको सिंबल्स क्लियर हो जाने चाहिए. ये चैप्टर के अंदर बहुत बार अब हम ये सिंबल्स का यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज इट फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली, in solving question and answer also, and you in understanding theories also. Understood?
Now we will study Ohm's law, which is a very important law, and this is going to give you a very important formula which helps in solving many problems. So let us start Ohm's law. Is there a relationship between potential difference across a conductor and the current through it? Let us explore with an activity. तो क्या कोई रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V का एंड करंट थ्रू इट I का, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं है? तो we are going to study with the help of activity. Let us start activity 12.1. Set up a circuit as shown in figure. जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा फिगर कैसा सर्किट सेटअप करना है. Consisting of nichrome wire. निक्रोम एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिससे वायर भी बनता है, बट जो हम रेगुलरली वायर यूज करते हैं वो जनरली कॉपर का होता है. दिस इज अ निक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ. एक वायर ले रहे हैं जो जिसका लेंथ है एक्स वाई से 0.5 मीटर. उसको हम 0.5 मीटर ले सकते हैं, मतलब 0.5 मीटर का एक वायर लिया है. मान लो कि इतना छोटा वायर लिया है, उसको नाम दे दिया है एक पॉइंट को एक्स एक पॉइंट को वाई, उसको नाम दे दिया है 0.5 मीटर. देखो अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन से वायर आपको डिनोट कर रहा हूँ, बट जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे थोड़ा सा अलग डायग्राम आएगा, चेंज होगा, जो मैं बताऊंगा क्यों है. एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच. ये सब चीजें हमें लेकर एक सर्किट बनानी है, इन शॉर्ट. अंडरस्टूड? और कैसे बनाएगी अब वो अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में. निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन मेटल्स. मतलब ये निक्रोन है, निक्रोम, इट इज अ एलॉय, जो कॉम्बिनेशन ये सब मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, एलॉय मिक्सचर से बना है. इन शॉर्ट लास्ट ईयर हमने देखा था एलॉय क्या होते हैं वो. So this is the circuit what we are going to get. So हमें कनेक्ट करना था बैटरीज यहाँ पे, ठीक है, वन बाय वन ये बैटरीज हम कनेक्ट करने वाले हैं. फिर यहाँ पे कनेक्ट करना था हमें एमीटर, फिर की था, ये 3 चीज हो गई. फिर हमारे पास एक बचा था वोल्ट मीटर, वो यहाँ पे मैंने रखा है. तो आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि एमीटर को आपको सीरीज में रखना है, सीरीज मतलब कंटिन्यूअस पाथ में, एंड वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में रखना है, जो आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में, सेशन 1 में. याद करना पड़ेगा आपको इन शॉर्ट, जो ये समझना है. तो पैरेलल मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे भी देखो ये वायर और यहाँ पे हम पैरेलल में रखा हुआ है. गॉट इट? अभी ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है सीरीज एंड पैरेलल का, वो अभी आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पूरा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो. सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी. यहाँ पे हमारा जो एक निक्रोम वायर की बात कर रहे थे, एक्स एंड वाई, ये है वायर, यहाँ पे उसको ऐसे डिनोट किया गया है. और ये सिंबल तो आप बोलोगे सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा देखा था. मतलब ये जो निक्रोम वायर है, दिस निक्रोम, इट इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. वो एक रेजिस्टेंस ही है. जब भी करंट, रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग आपको समझा देता हूं अभी. करंट को अपोज करने का जो मतलब वायर के अंदर, मटेरियल के अंदर कैपेसिटी होता है, वो है रेजिस्टेंस. अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस मतलब करंट को अपोज करेगा, करंट को जाने नहीं देगा. कोई कोई मतलब करंट को हाफ कर देता है, कोई थोड़ा रिड्यूस करता है, कोई जरा सा भी रिड्यूस नहीं करता है. तो जो ज्यादा रेजिस्ट करता है करंट को, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर. जो कम करता है करंट को रजिस्टर या नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर. जो ऑलरेडी आपको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स इन द सर्किट. तो पहले जो अभी सर्किट आपको दिखाया था उसमें सिर्फ हम एक ही सेल यूज करने वाले हैं, मतलब 1.5 वोल्ट. नोट द रीडिंग इन द एमीटर आई. तो जब भी हम सेल्स को
हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एंड उसी के कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो एमीटर के अंदर हमें रीडिंग कुछ मिलेगा जो होगा करंट का कैपेसिटी और करंट का रेट, मतलब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, मतलब अलग अलग करंट का वैल्यू मिलेगा हमें। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो बीच बीच में मुझे खांसी भी आ रही है तो प्लीज इग्नोर इट। फॉर द करंट and reading of the voltmeter for the potential difference across nichrome wire XY in the circuit। तो जब भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हमें दो मशीन्स है, डिवाइसेस है, जो कि एमीटर वो करंट दिखाएगा, करंट का वैल्यू, एंड एक वोल्ट मीटर है जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, वो हमें दिखाएगा वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा हमें। गॉट इट? नाउ टेबुलेट देम इन द टेबल एंड फिर हमें ये जो वैल्यूज है वो हमें एक टेबल में कलेक्ट करना है। करना क्या है वो आपको बता दूं, ये एक्टिविटी के अंदर हमने 4 सेल लिए है, बट यहाँ पे हमने पहले कितना सेल कनेक्ट किया है? 1 सेल में कनेक्ट करूंगा, फिर मैं एमीटर में रीडिंग देखूंगा, वोल्ट मीटर में रीडिंग देखूंगा, दोनों का रीडिंग मैं नोट डाउन करूंगा। फिर दूसरा सेल कनेक्ट करूंगा, मतलब मैंने एनर्जी बढ़ाई तो करंट भी बढ़ेगा एंड वोल्ट मीटर में रीडिंग भी बढ़ेगा। राइट? समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे जैसे मैं सेल्स बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे करंट का वैल्यू एमीटर के अंदर ज्यादा दिखाएगा एंड वोल्ट वोल्ट में आएगा, वोल्ट मीटर के अंदर जो वैल्यू होगा वोल्ट में होगा एंड वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, कनेक्ट 2 सेल्स इन द सर्किट। जो अभी ऑलरेडी मैंने बताया, पहले एक सेल कनेक्ट करना था, यहाँ पे देखो पहले एक सेल, और यहाँ पे इसलिए डैश 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 में आपको दिखाया है। फर्स्ट कनेक्ट ओनली 1 सेल, फिर आप यहाँ पे एमीटर में रीडिंग मेजर करो और वोल्ट मीटर में रीडिंग मेजर करो, फिर 2 सेल कनेक्ट करो, फिर से मेजर करो, ऐसे 4 सेल अलग अलग कनेक्ट एक ही साथ करने हैं। यहाँ पे 2 सेल हो गए, फिर तीसरा के साथ में कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फोर्थ कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे। And note the respective readings of the emitter and voltmeter for the value of current through the nichrome wire and potential difference across nichrome wire। तो निक्रोम के वायर के थ्रू, मतलब यहाँ पे देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा। अंडरस्टूड? पूरे सर्किट के अंदर। Repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately। मतलब आपको बारी बारी पहले एक ही सेल यूज करो, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे अलग अलग सेल्स यूज कर कर मैंने बताया आपको एमीटर एंड वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखना है टेबल के फॉर्म में। आफ्टर दैट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V to I। तो वोल्ट मीटर में से मुझे V का वैल्यू मिलेगा, एमीटर में से मुझे I का वैल्यू मिलेगा, और फिर मैं उसका रेशियो फाइंड करूंगा। हर एक बार जब एक सेल कनेक्टेड है तो रेशियो कितना हुआ, दूसरा सेल कनेक्टेड है तो रेशियो कितना हुआ, ऐसे मैं पूरा डिटेल्स फाइंड करने वाला हूँ। और आप इमेजिन नहीं करो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूज मुझे मिलने वाले हैं। तो दिस इज द टेबल विच वी विल गेट। तो जब भी मैंने यहाँ पे मैं 3 ही सिप ले रहा हूँ, आप 4 भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सो वन सेल व्हेन आई एम गोइंग टू यूज, तो मुझे एमीटर के अंदर मुझे जो रीडिंग दिखाएगा वो 0.1 दिखाएगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है करंट थ्रू निक्रोम वायर एंड उसको आई लिखते हैं और एम्पियर में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एम्पियर नहीं लिख रहा हूँ सब में। ओके, एंड हियर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निक्रोम वायर V, उसको वोल्ट बोलता हूँ मैं। तो ये हो गया V में, तो मैं हर जगह पे लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो when I am connecting one cell, I am getting 0.1 ampere and the cell has 1.5 voltage, जो ऑलरेडी हमने पहले से इंफॉर्म ही किया था कि 1.5 वोल्ट का सेल लेना है। तो V by I
तो V अपॉन I का रेशियो फाइंड करना है, मतलब 1.5 डिवाइड बाय 0.1, तो आपको 15 मिलेगा। गॉट इट। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू। जब भी मैंने दो सेल कनेक्ट किए तो मेरा करंट हो गया 0.2 और वोल्ट कितना हुआ होगा, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग कितना दिखाएगा 3। फिर से मैंने 3 बाई 0.2 किया, अगेन आई गॉट 15। ये कोई मैंने बनाया नहीं है, दिस इज द मैथमेटिक्स। 3 बाई 0.2 अब कैलकुलेट करोगे 15, यानी एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यूज लाके यहाँ पे रखे हुए हैं। Then when you have 3 cells in the connected in the series, you will get a 0.4 current, 0.4 ampere current. Voltmeter will show you 6 volt reading, and when you calculate 6 by 0.4, again you get 15. So here in all these three cases you are getting same value. You can look at this table. Now what we are going to do, plot a graph between V and I. तो आपको मैथमेटिक्स में जीका सर ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राफ्स ड्रॉ करना सिखाया है, ठीक है। तो वो टेक्निक यूज करके यहाँ पे हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ v, हियर वी आर हैविंग वैल्यूज ऑफ i। तो मुझे x एंड y एक्सिस प्लॉट करने हैं, एंड x पर मैं करंट लूंगा, y पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ द ग्राफ। वेरी सिंपल। एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ, एंड फिर ग्राफ का नेचर देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, कैसी लाइन आ रही है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे जितने रिक्वायर्ड डेटा थे उतने मैंने ले लिए। मैंने V वाला एक पार्ट ले लिया है जो हमने लास्ट टेबल में से लिया, एंड I वाला लिया था, क्योंकि ये दोनों मुझे जरूरत है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसा ग्राफ होगा, राइट। जनरली ऐसे ड्रॉ करते हो, ये आप एक्स एक्सिस बताते हो, ये आप वाई एक्सिस बताते हो। ओके, ठीक है, सर ने आपको सिखाया होगा। नाउ हम यहाँ पे जो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो प्रॉपर बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस। तो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस के साइड करंट, और वो होगा एम्पियर में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो एक एक छोड़ के मैंने मार्क कर दिया वो। एंड वोल्टेज मेरे पास 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वहां से कर दिया 1.5, 3.0, 4.5, 6.0। गॉट इट। तो ये मेरा ग्राफ का जो लेबलिंग था, वो लेबलिंग मेरा डन हो गया। नाउ दिस ग्राफ पेपर इज रेडी फॉर प्लॉटिंग। अब मैं फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करूंगा, मतलब 0.1 एम्पियर पर कितना वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पे 0.1 एम्पियर और ये ऐसे चेक करूंगा, तो ये मुझे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला मुझे। गॉट इट, मैंने यहाँ पे राउंड से मार्क कर दिया है। नाउ आई विल गो फॉर सेकंड पॉइंट, जो 0.2। तो मैं 0.2 से एक लाइन ले रहा हूँ ऐसे स्ट्रेट, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। 3.0 स्ट्रेट ऐसे किया, अगेन मुझे यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिला। गॉट इट। देन कम्स 0.4 एंड 6.0। तो 0.4 ऐसे गया एंड 6.0 यहाँ पे ये मिला। तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स अलग अलग मिल गए हैं। ओके, एंड नाउ व्हेन आई कनेक्ट इट विल गिव यू स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमें ऐसे बनाना है। ये पॉइंट्स मुझे मिल गए एंड वो स्टार्टिंग 0 से लेके वो स्ट्रेट लाइन आपको देंगे जब भी ये सब पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे आप। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 रीडिंग्स ली है, अब 10 रीडिंग्स भी लोगे तो भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो उसमें से हमें एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मिलने वाली है जो अब हम देखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वी आई ग्राफ फॉर निक्रोम वायर। ये वी आई ग्राफ है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई मतलब करंट। In this activity, you will find that approximately the same value of V upon I is obtained in each cases. तो ये एक्टिविटी में देखा हमने कि हर एक अलग अलग V था, अलग अलग I मिला हमें V के लिए। तो उसका जो रेशियो था V by I,
वो तो हमें सब में सेम मिला एंड वो मिला 15, राइट। तो ये मैं इंटरेस्टिंग डेटा आपको बोलना चाहता था कि कितने वैल्यू अलग अलग लिए, और ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज मतलब खुद से नहीं बनाए, ये एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटी था वो कैरी आउट कर कर हमने ये वैल्यूज निकाले। Thus the VI graph is a straight line that passes through origin of the graph as shown in the graph। जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो ओरिजिन से पास होकर मतलब जीरो से पास होकर स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एंड thus V by I is a constant ratio। सेम होता है तो हम बोलते हैं ना कांस्टेंट रेशियो, तो V by I जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। In 1827, a German physicist, George Simon Ohm, found out the relationship between current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal। तो ये जो V by I का कांस्टेंट रेशियो है वो जॉर्ज सिमोन ओम ने फाइंड किया था। अंडरस्टूड? The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit। देखो ये ओम्स लॉ का हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट है। बहुत बार ऐसा पूछते हैं स्टेट ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो ये सब चीज आपको समझाना है, तो आप रेडी रहना। ये आंसर वर्कशीट में होगा, क्वेश्चन होगा ही होगा, तो ठीक से ध्यान देना। ये उसका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट जो होता है वही होगा, वो आपके वर्ड्स में आप नहीं लिख पाते कभी, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है? द पोटेंशियल डिफरेंस V, और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आए तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मटेरियल और गिवन मेटालिक वायर, दो एंड्स के बीच में ये हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये क्यों दो तीन बार रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि आपको समझने में इजी रहे, इसीलिए। तो थोड़ा मेरा वॉइस भी आज बैठा हुआ आपको लग रहा होगा, मतलब सर्दी खांसी हुई है, तो कोई चीज प्रॉपर्ली कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली फोन करके व्हाट्सएप करके पूछ लेना, डाउट्स सॉल्व करवा लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस V किसके, मैंने बोला था कि दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो अक्रॉस एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? जो अभी हमने देखा I, VI is directly proportional to the current flowing, एंड करंट किस में फ्लो हो रहा है? सर्किट के अंदर। the current flowing through it मतलब सर्किट, प्रोवाइडेड, और ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स सेम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक का वो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अंडरस्टूड? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज उसको सीरियसली लो, समझो, स्टेटमेंट एक दो बार खुद से देखे बिना लिखो, बहुत इजी है। इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट V is directly proportional to I। ये जो सिंबल है ऐसा 8 है, उसको हॉरिजॉन्टली सुला दो और बीच में से यहाँ से थोड़ा सा पार्ट काट दो, तो इट विल बिकम अ प्रोपोर्शनल साइन। ये प्रोपोर्शनल साइन है जो स्टैंडर्ड 9th में भी था, जो आपको पता हो तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तब मैंने समझाया था। तो हियर V is a proportional to I, ओके। और यू कैन राइट V by I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हमें पता ही है, जो अभी ग्राफ हमने टेबल बनाया तो हमें पता चल गया, और यहाँ से भी पता चल गया। तो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, उसको हमने क्वांटिटी के टर्म में नाम दे दिया है कैपिटल R, ओके। तो ये कैपिटल R क्या है? विल सी नाउ, ओके। सो V इज इक्वल टू आई आर, ये कांस्टेंट चला गया तो हम लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो ये I इधर चला गया तो हमें क्या मिला? V इज इक्वल टू आई आर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा,
दिस इज अ ओम्स फॉर्मूला, ओम्स लॉ फॉर्मूला और ओम्स लॉ डायरेक्टली बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V is equal to IR is the Ohm's law. Now in the above equation, R is the constant for a given metallic wire. ये जो R है वो कांस्टेंट है, ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हमें पता है V बाई आई क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट के बदले हमने क्या यूज किया, कैपिटल R। ओके, सो R क्या होगा, कांस्टेंट होगा कोई पर्टिकुलर मेटेलिक वायर के लिए। कॉपर का R अलग होगा, निक्रोम का R अलग होगा, एल्यूमिनियम का R अलग होगा। R मतलब रेजिस्टेंस at a given temperature and it is called as its resistance। देखो ये R का नाम दिया है, ये R एक क्वांटिटी है जो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेजिस्टेंस का मतलब डेफिनेशन स्मॉल मीनिंग समझाया था कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट it is a property or a capacity to oppose the current। Now it is a real definition that you should remember and you should write। It is a property of a conductor। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब करंट हुआ, तो सिंपल में आप ये दोनों चीज लिख सकते हो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। बोथ आर सेम एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है तो उसका एक यूनिट भी होगा। हमें मेजर करना पड़ेगा कितना रेजिस्टेंस है रहा है, कितना करंट को अपोज कर रहा है, तो कोई क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज OHM, ओम। और ये क्यों दिया है, क्योंकि जॉर्ज सिमोन ओम जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये ओम्स लॉ डिराइव किया है। एंड ओम का सिंबल क्या है, ऐसा ये। ओके, आपने उल्टा यू बना दिया और दोनों को एक लाइन दे दिया है। दिस इज कॉल्ड एज ओम। ये सिंबल को ओम बोलेंगे। OHM लिखो या ये सिंबल बनाओ, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। बट ये जनरली हम रेजिस्टेंस के लिए हम ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू 5 ओम, ऐसे लिखते हैं हम जनरली। ओके, 5 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, V इज इक्वल टू आई आर को, तो मैं R को वहां पे ही रह रहा हूं और I को इस साइड ले लिया तो V बाई आई हो गया। तो ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है, बोथ आर करेक्ट। If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance R at the conductor is 1 ohm। अंडरस्टूड? तो जैसे हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन बनाया, 1 वोल्ट का डेफिनेशन बनाया, यहाँ पे हमने 1 ओम का डेफिनेशन बनाया। 1 ओम का डेफिनेशन बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला का यूज किया। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर, then the resistance of the conductor is 1 ohm। Understood? So this is a very simple definition। एंड उसका फॉर्मूला में से लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, जो ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में से सिमिलरली डिराइव किया हुआ है। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर, वी गेट I इक्वल टू V बाई आर। तो इसके तीन तरीके हैं जो आपको यहाँ पे लिख के दिखा दो। V इज इक्वल टू आई आर, ये फर्स्ट हुआ। V बाई आई इज इक्वल टू R, ये सेकंड हुआ। एंड I इज इक्वल टू V बाई R, ये थर्ड हुआ। ये तीनों फॉर्मूला ओम्स लॉ के ही है, मैं अलग अलग तरीके से सिर्फ लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमें एक ही चीज समझनी है, ये जो हमने ऐसा रखा V बाई आर, आई इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो I एंड R का कनेक्शन है। जब भी रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिवर्स में। ये वैल्यू नीचे का वैल्यू बढ़ता जाएगा
तो ये टोटल वैल्यू कैसा होगा, छोटा होता जाएगा, मतलब ये छोटा, ये जो है वो आई है पूरा वैल्यू, गॉट इट। अब यहाँ पे उल्टा भी उसका होगा कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, आर को रिड्यूस कर रहा हूं मैं, तो ये पूरा वैल्यू कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब ये इंक्रीज हो रहा है मतलब आई इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, आई जब इंक्रीज होगा आर डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज दिख रहा है आपको तो आर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑपोजिट है एक दूसरे से। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ, सिंपल कि रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट आधा हो जाएगा। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें कोई कोई बार करंट को बढ़ाना है, कोई कोई बार करंट को कम करना है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आई है, ये सब फॉर्मूला आया है, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट को कम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने से करंट को बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक यू कैन से फॉर्मूला हाथ लगा हुआ है। अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया, अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम अब आ रहा है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। मुझे सेल्स को बढ़ाना नहीं है, मेरे पास जो पावर आ रहा है वो उतना ही होगा पावर भी मुझे सेम ही मिलने वाला है, बट उसमें मैं करंट को कैसे कम कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से मैं करंट को मतलब बढ़ा या कम कर सकता हूँ। वो कैसे? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से मैं रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस को बढ़ा या कम कर सकता हूँ तो इनडायरेक्टली करंट भी बढ़ेगा और कम होगा, राइट। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट। ठीक है, हम रेगुलेट के बदले चेंज भी लिख सकते हैं। अ कंपोनेंट यूज्ड टू चेंज करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change resistance in the circuit. तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रियोस्टेट यूज होता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होता है। गॉट इट? So this was all about this session. ये सेशन के अंदर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, दैट इज ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो हमने एक ही में से डिराइव किया हुआ है। उसके अंदर हमने सिंबल्स भी पढ़े हैं, आगे सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अलग अलग डिवाइस के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, और उस वो चीजें यूज कर हम बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, जो अब हम आगे के सेशंस में पढ़ने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण बीच में थोड़ा आपको डिस्टरबेंस फील हुआ होगा, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, हमारा ट्राई ऐसा रहता है कि आपको बेस्ट वीडियो दे विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बट आज थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण ऐसा डिस्टरबेंस होगा। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।